لاہور فضائی آلودگی کے اعتبار سے دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ شہر میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح 328 ریکارڈ کی گئی ہے۔ شہر میں فضائی آلودگی بے قابو، ایئر کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح 328 ریکارڈ کی گئی۔ لاہور آلودگی کے اعتبار سے دنیا بھر کے آلودہ شہروں میں دوسرے نمبر پر پہنچ گیا۔ ڈیفنس فیز 8 میں ایئر کوالٹی انڈیکس 372، سید مراتب علی روڈ 313، جوہر ٹاؤن 311، مال روڈ پر 300 ریکارڈ کیا گیا۔ شہر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر غریب طبقے کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ درجنوں یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے اور چینی کے اسٹاک موجود نہیں۔ غریب طبقہ سامان کی آس لیے یوٹیلیٹی سٹورز کے چکر لگا لگا کر تھک گیا۔ شہر بھر کے رام گڑھ، دروغہ والا، جی ٹی روڈ، مناوا، شادمان، دھرم پورہ سمیت متعدد علاقوں میں یوٹیلیٹی سٹورز پر سستا آٹا اور چینی دستیاب نہیں۔ اسی طرح الطاف کالونی، رینجرز ہیڈ کوارٹر، غازی آباد، نظام آباد، تاج پورہ یوٹیلیٹی سٹور پر چینی اور آٹا موجود نہیں۔ کم آمدنی والا طبقہ آٹے اور چینی کے حصول کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز کے چکر لگا لگا کر خوار ہو گیا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ اگر حکومتی سٹوروں سے غریبوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا سامان میسر نہیں تو ان سٹوروں کو بند کر دیا جائے۔ لاہور سمیت ملک بھر کے تعلیمی بورڈز میں سال 2024 سے نمبرز ختم، گریڈ سسٹم کو بحال کر دیا۔ امیدواروں کو رزلٹ کارڈز پر گریڈز کے ساتھ CGPA دیا جائے گا۔ سمیت ملک بھر کے تعلیمی بورڈز میں سال 2024 سے نمبرز ختم کر کے گریڈ سسٹم بحال کر دیا گیا ہے۔ آئندہ سال امیدواروں کو رزلٹ کارڈز گریڈ سسٹم کے تحت جاری کیے جائیں گے۔ گریڈ کے ساتھ CGPA بھی دیا جائے گا۔ IBCC کے 27 اکتوبر کو ہونے والے اجلاس میں گریڈنگ سسٹم شروع کرنے کا حتمی فیصلہ کیا گیا۔ پنجاب بورڈ سندھ میں واقع تعلیمی بورڈز کو گریڈنگ سسٹم کے حوالے سے ٹریننگ فراہم کریں گے۔ رواں سال رزلٹ کارڈز میں نمبرز کے ساتھ گریڈز بھی جاری کیے گئے تھے۔ آئندہ تعلیمی سال سے صرف گریڈز اور CGPA ہی جاری کیے جائیں گے۔ طلباء نے حکومتی فیصلے کو خوش آئندہ قرار دے دیا ہے۔ اس سے نقل کے رجحان کی بھی حوصلہ شکنی ہوگی۔ سپریم کورٹ بار کے انتخابات، آسما جہانگیر گروپ کے صدارتی امیدوار شہزاد شوکت کامیاب۔ میاں عبدالقدوس کا دوسرا نمبر، لاہور رجسٹری میں 1073 ووٹ کاسٹ ہوئے۔ شوکت شہزاد نے 613 ووٹ حاصل کیے۔ میاں عبدالقدوس کے پلڑے میں 452 ووٹ آئے۔ دیگر شہروں میں بھی آسما جہانگیر گروپ کا پلڑا بھاری رہا۔ نومنتخب صدر شہزاد شوکت کی حامیوں کا جشن۔ پر اللہ نے چاہا تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سرے منہ انحراف نہیں ہونے دے گی۔ ہم پوری طاقت سے آئین کی بالادستی کی حفاظت کریں گے۔ ہم آپ کے سامنے جہاں اللہ کے حضور شکر گزار ہیں، ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی نجات، پاکستان کی ترقی ڈائیلاگ میں اور ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو برداشت کرنے میں ہے، اور اللہ نے چاہا تو ہم ایسی فضا کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے جس میں تمام تر سٹیک ہولڈرز بیٹھ کر اس ملک کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم یہ پوری کوشش کریں گے کہ تمام ادارے بشمول سپریم پاکستان سپریم کورٹ بار شہزاد شوکت نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بار کے وکلاء کی خدمت کرتا رہوں گا، آئین کی حکمرانی کے لیے کام بھی کرتے رہیں گے۔ ٹیسکو بجلی چوروں سے بلوں کی وصولی کرنے میں ناکام ہونے لگی۔ وفاقی حکومت کی انسداد بجلی چوری مہم میں مقدمات درج ہونے کے باوجود 2 ماہ کے دوران 1 ارب 35 کروڑ روپے کی ریکوری نہ ہو سکی۔ پاور ڈویژن اور پولیس کی معاونت ہونے کے باوجود بجلی چوروں سے واجبات وصول نہیں کر سکے۔ ڈیٹیکشن بلوں کی مد میں 1 ارب 35 کروڑ روپے کے واجبات کی وصولی ناممکن ہو گئی۔ لیسکو نے 2 ماہ کے دوران مجموعی طور پر 1 ارب 88 کروڑ روپے کی ڈیٹیکشن بل چارج کیے تھے، تاہم مہم کے دوران ڈیٹیکشن بلوں کی ریکوری صرف 53 کروڑ روپے کی جا سکی۔ لیسکو نے بجلی چوروں کو پکڑ کر ریکوری کے بجائے ڈیٹیکشن بل چارج کرنے پر فوکس کیا۔ مجموعی طور پر 21,210 افراد کے خلاف بجلی چوری کے مقدمات درج کروائے گئے۔ مقدمات کی بنیاد پر 10,897 بجلی چوروں کو گرفتار کیا گیا، جبکہ بجلی چوروں کی معاونت کرنے پر 42 ملازمین کو معطل بھی کیا گیا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اسکولوں میں موجود مخدوش حالت والے کلاس رومز کے استعمال پر پابندی عائد کر دی ہے۔
स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने स्कूलों में मौजूद मखदूश हालत वाले क्लासरूम्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। अहकामात की खिलाफ वर्जी या गफलत पर मुतालिका इदारे के सरबराह जिम्मेदार होंगे। महकमा तालीम में तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को मरासला जारी कर दिया। पंजाब भर में 205 स्कूलों में खस्ताहाल इमारतों में सैकड़ों खतरनाक कमरे मौजूद हैं। लाहौर के 4 स्कूलों में दर्जनों कमरों को खतरनाक करार दिया जा चुका है। असातिज़ा का कहना है कि लाहौर की अक्सर सरकारी स्कूलों की इमारतें अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं। असातिज़ा का मजीद कहना है कि क्लासरूम्स की हालत बहुत खराब है, किसी वक्त भी गिर सकते हैं। बेशतर स्कूलों में 50 साल पुराने कमरे भी मौजूद हैं। शहरियों को दरपेश मसाइल पर ये रिपोर्ट देखिए। गज्जूमता का इलाका सोए वाला रोड मसाइल की आमाजगाह बन गया। सड़कें टूट फूट का शिकार हो गयी, गलियों की हालत अबतर हो गई। नकारा सीवरेज निजाम, खुले मेनहोल्स, जगह जगह गंदगी और गलाजत के ढेर लग गए। इलाके में उठते ताफुन से सांस लेना मुश्किल हो गया। अहले इलाका ने आला हुकाम से नोटिस लेकर मसाइल फौरी हल करवाने का मुतालबा कर दिया। बाजी गुजरते हैं, हमारी माएँ बहनें गुजरती ये बाजार से, जब बारिश पड़ती है तो बहुत बुरा हाल होता है, गुजरा नहीं जाता। मियाँ चौक कच्चा जेल रोड खस्ता हाली का शिकार हो गई। जगह जगह गड्ढे पड़ने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। मकीनों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। सड़क पर पैदल चलना भी मुहाल हो गया। रिहायशियों ने इंतजामिया से रोड की जल्द अज जल्द मरम्मत करवाने का मुतालबा कर दिया। फारूकाबाद भट्टा चौक में बेहंगम तारे मकीनों के लिए वबाले जान बन गयी। मुतादिद गलियों में लटकती तारे किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है। अहले इलाका का कहना है मुतादिद बार शिकायत दर्ज करवाई मगर कोई सुनवाई नहीं होती। कादरी चौक ग्रीन टाउन की सड़क भी हाल से बेहाल हो गई। सड़क किनारे टूटी रोड के मलबे और गंदगी के अंबार लग गए। बासियों को शदीद मुश्किलात का सामना, लोगों के कारोबार भी तबाह होने लगे। गंदगी के बायस ग्रीन बेल्ट की खूबसूरती भी मांद पड़ने लगी। अहले इलाका ने इंतजामिया से सड़क की जल्द से जल्द मुरम्मत करवाने की फरियाद कर दी। इनकारी बच्चों को पोलियो के कतरे ना पिलाने पर डीसी लाहौर बरहम, टीमों को वापस फील्ड में भेज दिया। कैंट में 12 रेफ्यूजल रेट पर डीडीएचओ कैंट से जवाब तलब। पोलियो के पहले रोज 4 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। पोलियो मुहिम के दौरान इनकारी बच्चों को कतरे पिलाए बगैर फील्ड से क्यों निकले? डीसी लाहौर गुस्से में आ गईं। डीसी लाहौर ने फौरी पोलियो टीम को इजलास से वापस फील्ड में भेज दिया और एसी टीम को टीम की मदद करने की हिदायत कर दी। एक तहसील में 10 रिफ्यूजल केस को फौरी कवर करके रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत कर दी। डीसी लाहौर राफिया हैदर की जेर सदारत इंसदादे पोलियो मुहिम के पहले रोज कारकर्दगी का जायजा इजलास हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, एसीज, सीसीओ हेल्थ, डीडीएचओज, डब्ल्यूएचओ नुमाइंदगान समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास में डीसी लाहौर राफिया हैदर को पहले रोज की कारकर्दगी के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कैंट के इलाके में 12 रिफ्यूजल केसेस पर डीडीएचओ कैंट से जवाब तलब कर लिया गया। पोलियो मुहिम के पहले रोज नाकिस कारकर्दगी पर डीडीएचओ समनाबाद डॉक्टर फरीद से भी जवाब तलबी की गई। कारकुनातियों में मुबैना बेज़ाब्तगी पर नैब एक्शन नैब लाहौर ने सोशल सिक्योरिटी से जून 2022 के बाद तमाम सेक्शंस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक खसूसी तौर पर अद्वियात की खरीदारी में मुबैना बेज़ाब्तगी का रिकॉर्ड डायरेक्टर परचेज से तलब किया गया। हेड ऑफिस ने मनपसंद अफराद को बचाने के लिए नोटिस ना लिया। ज़राए के मुताबिक हेड ऑफिस की मुसलसल हट धर्मी के बाद नैब लाहौर ने रिकॉर्ड तलबी शुरू की। अद्वियात की खरीदारी में बेज़ाब्तियों के बायस सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में अद्वियात की शदीद किल्लत का सामना है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पुलिस ने मनशियात फरोशी के बड़े गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान से करोड़ों रुपए मालियत की 66 किलोग्राम मुनशियात बरामद कर ली। फरोश जो हमने पकड़े, जिनसे हमने हैवी मिकदार में ये तकरीबन 1.5 मन से भी ज़्यादा अफीम, चर्स और आइस बरामद की गई है। इसमें एक खातून भी शामिल है। शमीम अख्तर साहब का रिकॉर्ड याफ्ता है मनशियात की। इसको थाना लोअर माल में मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज किया गया और इसके कब्जे से 12 किलो अफीम बरामद हुई। दूसरा काशिफ नवाज जो कि दीपालपुर ज़िला उकाड़ा का रहशी है। ठोकर न्याज बेग से लेके अली टाउन तक मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये उन यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को मनशियात भेजता था। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत इजलास डेयरी मसनूआत की पैदावार बढ़ाने और आवाम को सेहतमंद दूध की फराहमी के हवाले से मनसूबे का जायजा लिया गया। मिनिस्टर ब्लॉक में सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में महकमे लाइफ स्टॉक के अफसरान ने शिरकत की, जबकि इजलास में हुकूमत का दूध खरीद कर प्रोसेस करने के मनसूबे का जायज़ा। इस मौके पर इब्राहिम हसन मुराद ने कहा कि आवाम को सेहतमंद दूध की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और इस सिलसिले में प्रोसेस डेयरी मसनूआत की आवाम को फराहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। उनका कहना था कि दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए भी मुख्तलिफ मनसूबों पर काम कर रहे हैं।
महकमे औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब के ज़ेर एहतमाम लाहौर फेस्टिवल के दौरान दाता दरबार में महफिल समा का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर सैयद ताहिर रज़ा बुखारी की ज़ेर सदारत दाता दरबार कॉम्प्लेक्स में दूसरे रोज़ भी महफिल समा का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज़ कारी अब्दुल वहाब इब्राहिम ने तिलावत कलाम पाक से किया, जिसके बाद ज़िशान अली ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल की। महफिल समा में डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन आसिफ एजाज, एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार तौकीर महमूद बट्टू, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दाता दरबार मोहम्मद नुमान सैफी, मौलाना फतेह मोहम्मद राशदी, मौलाना मुख्तार नदीम, एडमिनिस्ट्रेटर बादशाही मस्जिद, तर्जुमान औकाफ मोहम्मद अली खान, असिस्टेंट डायरेक्टर मजहबी अमूर हाफिज जावेद शौकत, मैनेजर दाता दरबार शेख मोहम्मद जमील ताहिर मकसूद आसिफ मंसूर शरीक थे। महफिल समा ने कवाल हजरात ने फन का मुजाहरा करके हाजरीन से खूब दाद वसूल की। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के वफ्द का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात की। ट्रेनिंग शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आईजी पंजाब से मुलाकात के दौरान रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के लॉयड्स 1 ऑफिसर डेविड विलोड समेत दीगर अफसरान भी शामिल थे। आईजी पंजाब ने कहा कि पंजाब पुलिस के ट्रेन निसाब को मॉडर्न पुलिसिंग के SOPs पर अपग्रेड किया गया है। जदीद टेक्नोलॉजी, फोरेंसिक साइंस और इन्वेस्टिगेशन के जदीद मॉड्यूल्स के इस्तेमाल को तक़वियत दी जा रही है। कैनेडियन वफ्द ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पंजाब पुलिस की बरवक्त कार्रवाइयों और कामयाबियों को काबिल इस्ताइश करार दे दिया। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत इजलास मंसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की हदायत की गई। इजलास में दरबारों, मज़ारात और मसाजिद की तज़ीन व आराइश में पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी औकाफ समेत दिगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। अफसरान ने SMBR को मज़ारात और मसाजिद की तज़ीन व आराइश बारे ब्रीफिंग दी। नबील जावेद ने अफसरान को मनसूबे मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत की। नबील जावेद ने नेस्बाक, IDEP, औकाफ और वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर को बरवक्त मनसूबाजात मुकम्मल करने की हिदायत की। महकमा फाइनेंस को फंड्स की फ्राहमी बिला ताख़ीर यकीनी बनाने के लिए भी अहकाम जारी किए। अलनीरो स्कूल बहरिया टाउन के ज़ेरे एहतमाम फ़लस्तीन पर इसराइली मुज़ालिम के खिलाफ रैली निकाली गई। 800 से ज़ायद बच्चों ने शिरकत की। नन्हे बच्चों ने फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद की। अलनीरो स्कूल के ज़ेरे एहतमाम फ़लस्तीन पर इसराइली जुल्म के खिलाफ रैली का इनाकाद किया गया। बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए, फ़लस्तीनियों के हक में सदा बुलंद की। तुलबा के साथ उसातिज़ा की बड़ी तादाद भी रैली में शरीक हुई। ऑनर सोबिया इमरान, हाजरा इमरान, प्रिंसिपल सादिया नुशाद का कहना था कि रैली का मकसद फ़लस्तीन में बच्चों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ सदा बुलंद करना है। हम एक उम्मत हैं, हम फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए अपने बच्चों को आगाही देने के लिए निकले हैं। वहाँ जिस तरह हमारे मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, हमें अपने बच्चों को आगाह करना चाहिए। इस वक्त स्कूल के 800 बच्चे सड़क पे आए हैं। हम एक वॉक कर रहे हैं फ़लस्तीन में के ख़िलाफ़ में जो जुल्म हो रहे हैं उसके ख़िलाफ़। बच्चों को छोटी उम्र से ही हिस्ट्री के बारे में बताना शुरू करते हैं और यही हमारा मकाम है कि हम आज के बच्चों को एजुकेट करेंगे, उनको बताएंगे कि तो ये कल के हमारे लीडर्स हैं जो उनके हक के लिए और खड़े होंगे। नन्हे बच्चों का कहना था फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ खड़े हैं। आज हमने जो रैली निकाली उसका मकसद फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती था। जैसा कि हम सबको पता है कि इसराइल फ़लस्तीन में जुल्म कर रहा है और हम अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमेशा उनके साथ रहें। उधर हमारा पहला किबला था, मस्जिद अल अक्सा को प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम हमेशा पैलेस्टाइन के साथ रहेंगे। बच्चों समेत टीचर्स का कहना था, हम महसूस कर सकते हैं कि फ़लस्तीन के बच्चे किस कदर तकलीफ में हैं। मुसलमानों पर मस्जिद अक्सा का तहफ़्फ़ुज़ वाजिब है। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ मायदा वहीद, सिटी 42।